बेटी, मैंने जो आपको पढ़ाया अभी तक समझाया, तो दैट इज द स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट सेकंड चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने बताया था एम्पलीट्यूड कैसा होता है, उसमें कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन कैसे होती है बेटे, पीरियोडिकली चेंज होती है। द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज I is equal to I naught sin ओमेगा। मैंने आपको दिखा दिया वेयर I naught क्या बेटी पीक वैल्यू है। ओके, तो साइन फंक्शन में भी चेंज कर सकता है, अगर वो 90 से चेंज करता है तो वो कोसाइन फंक्शन में आ जाएगा। तो I is equal to I naught cos ओमेगा t, where I naught is called current amplitude, otherwise peak value of AC। peak value का मतलब बेटे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, पीक वैल्यू के इक्वल क्या है मैक्सिमम वैल्यू। if t is time period of AC and f is the frequency, तो ओमेगा is equal to 2 pi upon t या otherwise 2 pi f। मैंने अभी आपको पीछे अपने लेक्चर में अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी आपको बता दिया है, वही दैट इज डिपेंड ऑन द अल्टरनेटिंग करंट। द ईएमएफ केवल क्या लग जाएगा, ईएमएफ करंट की जगह ईएमएफ हो जाएगा, दैट इज सेम डेफिनेशन सेम इक्वेशन। ओके, द ईएमएफ या वोल्टेज whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is known as alternating EMF। The instantaneous value of alternating EMF that is E is equal to E naught sin omega t, and where E is equal to E naught cos omega t, where E naught क्या है बेटे, peak value of EMF, peak where E naught is, where E naught is a peak value of EMF। Is that clear? Topic is the mean or average value of AC। So mean value, otherwise what is the mean value of AC? It is that steady current which when passes through a circuit, which when passes through a circuit for half time period of the alternating currents and the same amount of charge as is done by the AC in the same time through the same circuit, it is denoted by IM or IA। क्या बात करते हैं, अगर हाफ टाइम पीरियड तक वो वर्क कर रही है अल्टरनेटिंग करंट, तो बेटे कौन सी वैल्यू कहलाती है, मीन वैल्यू कहलाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे, नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन मीन एंड पीक वैल्यू। रिलेशन बिटवीन द मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, देखिए। तो रिलेशन बिटवीन IM and I naught, IM and I naught, what is the IM? That is IM is the mean value and I naught is the peak value। तो you know very well, we know that I is equal to I naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t by definition of electric charge that is dq is equal to, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था, dq is equal to I dt and putting the value of I, dq is equal to I is I naught sin omega t into dt। और किसी का भी टोटल अगर हमें चार्जेस फाइंड करना होगा बेटे, तो क्या कर देंगे हम उसका इंटीग्रेशन। देखिए टोटल चार्ज that is the integrating value of 1 into dq, 1 into dq, that is the limit is 0 to q and this is I naught is a constant, that is a 0 to value of the mean value means 0 to t by 2 means half the time। okay, in an integration value of sin omega t into dt, omega t into dt। okay बेटी, तो what is the integrating value of this integration, that is a q and 0 to q and I naught is a constant and this integrating value is minus sin omega t, minus sin का कितना हो गया cos omega t and omega t का बेटे कितना होगा upon omega and integrating value is 0 to 2 t by 2। क्योंकि हम बेटे यहाँ जो फाइंड कर रहे हैं वो टोटल चार्ज फाइंड करना है, इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू कैसे हो जाएगी बेटे, जीरो हो जाएगी, यानी प्लस की हो जाएगी। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा अपन माइनस लोअर कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस जीरो, कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस जीरो, दैट इज q is equal to I naught upon omega mod, what is the value of
ओमेगा 2 pi upon t into t by 2 cos 0 is 1. T is cancelled, 2 is cancelled, and q is equal to I naught upon omega, and this value is cos pi minus 1. What is the value of cos pi? Yes, minus 1. Very good. So I naught upon omega, this value is minus 1 minus 1. That is a I naught upon omega. कितना रह गया बेटी? माइनस का 2. मॉड माइनस का 2 हो गया बेटी, तो कितना रह गया? ओनली 2 I naught upon omega. That is the value of q. That is the value of q. Q is equal to बेटी क्या था? 2 pi upon t. वैल्यू पुट कर देते हैं. q is equal to 2 I naught upon 2 pi upon t. 2 is cancelled, तो q is equal to I naught t upon pi. Equation number 1. Equation number 1. If Im is the mean value, if Im is the mean value of alternating current, that is, तो चार्ज बेटे कितना हो गया यहाँ के लिए? Q is equal to Im. कहाँ पर बेटे? T by 2 पर. Equation number 2 from 1 and 2. I देखिए बेटी, तो T is cancel, दोनों की T I की वैल्यू इक्वल कर दी, तो I naught upon f pi is equal to I m upon, तो हमें जो फाइंड करना है बेटी, तो I m कितना हो गया? That is I m is equal to 2 I naught upon pi. अगर हम इसको डिवाइड बेटे कितना रहेगा? I m is equal to 2 naught upon pi. इसको सॉल्व करो 0.636 I naught. हम सिमिलरली किसके लिए लिख सकते हैं? EMF के लिए. ये आपको पीछे बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में. रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, अदरवाइज RMS या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. इट इज स्टेडी करंट which when passed through a resistance for a given time will produce the same amount of heat as the AC does in the same resistance and in the same time. It is joined by IRMS and IB. मीन्स क्या? किसको हम स्क्वायर मीन वैल्यू कहते हैं? रूट स्क्वायर रूट मीन वैल्यू. बेटा उसने क्या रखा है? मीन वैल्यू के स्क्वायर रूट, किसी भी करंट के मीन वैल्यू के स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं बेटे? स्क्वायर रूट वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू कहते हैं. देखिए बेटे, दैट इज, हम बात कर रहे हैं बेटे स्क्वायर के मीन की. स्क्वायर के मीन की, तो स्क्वायर के मीन की अगर बात कर रहे हैं, टोटल करंट निकाले, तो मैंने अभी आपको दिखाया था टी से डिवाइड कर देते हैं. आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं. कहां से कहां तक निकाल रहे हैं बेटे? टोटल जब होता है तो टाइम पीरियड यानी इनटू dt एंड अपॉन कहां से कहां तक बेटे? t तक. टोटल का टाइम कितना हमारे पास? t है. याद रखिए वेयर I is equal to I naught साइन. अभी हम क्या निकाल रहे हैं बेटी? यानी कि स्क्वायर करंट की मीन वैल्यू फाइंड करना है. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? रूट यानी कि रूट मीन, उसको हम क्या कहेंगे? RMS. तो क्या देखेंगे? I स्क्वायर मीन वैल्यू कितना हो गया? 1 upon t. आउटर में ले लिया 0 to t. कितने बात कर रहे हैं? ओके बेटे, 0 to t. और वेयर I is equal to I naught स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t into dt. क्या साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है बेटे? नहीं होता है. तो नहीं होता उसको हम क्या कर लेंगे? आउटर में लिख लें. कांस्टेंट जो दे रखा है हमारा, क्या देखें? I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर अपॉन t 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t into dt. मैंने अभी आपको बताया sin स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करेंगे cos में, वेयर sin स्क्वायर ओमेगा t is equal to 1 minus cos 2 omega t and upon 2, and t is equal to 2 pi upon omega, and t is equal to 2 pi upon omega. Therefore I square mean value I naught square t is 2 pi upon omega 0 to 2 pi upon omega, and sin square t is 1 minus cos 2 omega t and whole upon 2 into dt. यहाँ देखिए बेटे कितना रह गया? I स्क्वायर बार इज इक्वल टू ओमेगा I नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई कांस्टेंट. इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं बेटे, यहाँ देखिए कितना हुआ? 1 अपॉन 2 मैंने बाहर निकाल लिया बेटे. इंटीग्रेटिंग 0 to
2 पाई अपॉन ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी आई स्क्वायर मीन वैल्यू जब कितना होगा बेटा देखिए आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई ओमेगा अपॉन 4 पाई समझ में आ गया बेटा इतनी बात कितना हुआ बेटा देखें इसका वन का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी cos का कितना हुआ बेटी cos का बच्चा बढ़ता है बेटी cos का इंटीग्रेशन sin हुआ sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 और लिमिट बेटी कहां से कहां तक 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 से कहां तक बेटी 2 पाई अपॉन ओमेगा ओमेगा बेटे लिमिट पुट कर रहे हैं i स्क्वायर बार i नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई देखिए बेटे इसको अब मैंने पुट करा तो 2 पाई अपॉन ओमेगा जब मैंने अपर पुट करा तो 2 पाई अपॉन ओमेगा यहां 2 पाई अपॉन ओमेगा पुट करा तो माइनस 0 आ गया बेटे 0 पुट करा तो माइनस 0 और 0 की वैल्यू 0 कितना रह गया i स्क्वायर मीन वैल्यू i नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई अपॉन ओमेगा ओमेगा इज कैंसिल 2 2 जा 4 पाई इज कैंसिल दैट इज i स्क्वायर y is equal to I not square upon that is the mean value of current देखिए बेटे मुझे क्या निकालना है स्क्वायर रूट वैल्यू क्या निकालना है बेटे स्क्वायर रूट वैल्यू क्या देखिए कितना हुआ mean square of the current value I square bar बेटे वैल्यू पुट कर दीजिएगा I RMS is equal to कितनी वैल्यू आई बेटे इसकी I not square upon I RMS is equal to I not upon root 2 अगर मैं root 2 की वैल्यू 1.14 क्या देखें I RMS is equal to I not upon 1.414 डिवाइड कर रहा हूं बेटे I RMS is equal to 0.6 मिनट तो I RMS की वैल्यू यानी 1.414 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.707 I not सिमिलरली हम बेटे EMF के लिए भी लिख सकते हैं तो EMF के लिए बेटे E RMS क्या कहलाएगा बेटे E RMS तो E RMS is equal to E not upon root